Namaskar. Welcome, my dear friends, artists from Germany, UK, Russia, Brazil, USA, Myanmar, and India. A large number of artists are taking part in the Peace March against the terrorism ongoing on the world, which is not fit for society by any way and disturbing all the sections, all the areas. So keeping in view, artists are also now united against the terrorism all over the world. And India has taken lead in this way that we are organizing a peace march of artists. Tools are different. We are having our tools, brushes, paintings, and drawings, and cartoons also. So in this Peace March, as an exhibition, international level, we are organizing. Today, this is 25th of December, and this is also a very good occasion as the birthday of our late beloved Prime Minister Sri Atal Bihari Vajpayee. So now today we take this opportunity to welcome you all, viewers from all over the world, to see this Peace March of artists with paintings as a national, international exhibition of arts today, 25th of December 2020. Before proceeding further, I would like to introduce the team which is behind this total project under Kaladrishyam. Myself, Vijay Vahal, national artist from India, looking after this whole project, and I am curator of this international exhibition of art. My next member of this team, very important one, Mr. Ravinder Bharadwaj, a world-renowned sculptor. Very good projects have undertaken by Mr. Ravinder Bharadwaj here in India and abroad also. So he is looking after as a head of overseas participation. Next one, Mr. Devidas Khatri, who is also very renowned sculptor and also painter from India. He is looking after the job of as a head of participation from India. Another one, last
but not the least, Mr. Abhishek, the head of technical support for this project. So this is our team. Now I call Mr. Ravinder Bharadwaj to say few words for this project of Peace March. Thanks to everyone who are part of the Peace March. I think peace can come when we respect to others' thought. If we are imposing our thought to another person, that ends to violence and terrorism. I think we should respect to each other. We should respect everyone's thought, and that can bring peace. Thank you very much. Thank you, Mr. Ravinder Bharadwaj. In this exhibition, from all over the world, so many very senior, very prestigious artists taking part. And from that list, one is Mr. Shyam Sharma, very renowned block painting expert, great artist, and Government of India has given him a public award, Padam Shri, last year. So I would like to request Mr. Shyam Sharma, Padam Shri, to say a few words on this exhibition in which he is also a participant. Please. नमस्कार, मैं श्याम शर्मा। बड़े प्रसन्नता का विषय है कि दिल्ली की प्रतिष्ठित संस्था कला दृश्यम ऑनलाइन कला प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। ये प्रदर्शनी अंतर्राष्ट्रीय है। इसका विषय है कलाकार आतंकवाद के विरुद्ध में। आज विश्वव्यापी आतंकवाद फैलता जा रहा है। ऐसे में संस्था ने भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर एक पीस मार्च कला प्रदर्शनी के माध्यम से आयोजित किया है। इसमें 8 देशों के लगभग 25 से अधिक कलाकार भाग ले रहे हैं। उनकी कलाकृतियों का प्रदर्शन ऑनलाइन हो रहा है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि संस्था नियमित समाज और कलाकार को जोड़ने में प्रयत्नशील है। भाई बहल जी ने बड़े परिश्रम से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है। निश्चित रूप से कला प्रेमियों के लिए, कलाकारों के लिए और समाज के लिए ये प्रदर्शनी नया चाक्षुष अनुभव देगी, ऐसी आशा है। मैं प्रदर्शनी की सफलता के लिए शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं बहल जी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने कोरोना काल में ऑनलाइन इस कला शिविर का, इस कला प्रदर्शनी का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। Thank you, Shyam Sharma ji. We have one more great artist to say a few words on this
occasion, Mr. Krishna Shetty, the great artist of South India, and he was also administrator of Lalit Kala Academy. It's a very prestigious institution of India, working in the field of art for artists. I will request Mr. Shetty to say a few words on this peace march under Kaladrishyam. Please, Mr. Shetty. Ladies and gentlemen, a warm greetings to you all. I am very happy to be the part of this international online show on Peace March. At the outset, I congratulate Kaladrishyam and Mr. Vijay Wahal for their innovative concept. Their logo and their statement says that Kaladrishyam for intense nationalism against terrorism. As everybody knows that today we are facing many evils in our society. Terrorism is one among that. As terrorists are waging a war against nation and people, as artists, we also need to wage a war against them. We need to wage a war against terrorism. But our tools are different. Terrorists are using grenades, bombs, etc. But as an artist, we need to wage a war against terrorism by using tools, our tools. Artist tools are canvas, paints, brushes, etc. And as everybody knows that today we are in the midst of COVID. COVID is also creating many problems to artist community. But as an artist, we have resilience and we will face any challenges in future also. And as an artist and art lover too, I think that people from all over the world view this show and they will enjoy as well as they will buy some of your works. Once again, I congratulate you all and all the best for your new endeavor. Thank you very much. Yes, thank you very much, Mr. Shetty, for your valuable comments and very deep knowledge of Kaladrishyam, his logo, his motto, and also for the Peace March. So nice. Thank you. Thank you very much. अब हम उस द्वार पर पहुंच गए हैं जहां से इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रारंभ होता है। हमारे साथ आज जो उद्घाटन करता है विशेष है। हमारे साथ आज कला के क्षेत्र से नहीं बल्कि एक फौजी हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर राज बहादुर शर्मा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, फौज में बहुत काम किया है, बहुत दिनों तक काम किया है, बहुत रेनाउंड सोल्जर्स ऑफिसर्स में उनकी गिनती रही है। आज वो हमारे बीच में हैं, काफी लर्नेड हैं। हमारे ब्रिगेडियर साहब ने फौजी तबीयत होने के बाद भी लिटरेरी फील्ड में भी काफी काम किया है। वे पीएचडी भी हैं, इसीलिए वो ब्रिगेडियर डॉक्टर राज बहादुर शर्मा विशिष्ट सेवा मेडल से के नाम से पुकारे जाते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे आज पीस मार्च अगेंस्ट टेररिज्म वर्ल्ड वाइड पर आयोजित इस इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट का उद्घाटन करें। कृपया। जय हिंद, वंदे मातरम। आज इस
इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट का इनॉग्रेशन करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि इस एग्जीबिशन का विषय एक बहुत समीचीन विषय है कि किस प्रकार से जो आर्टिस्ट हैं वो देश में इस वक्त जो क्रांति आ रही है उसमें अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं, और दूसरी इसलिए कि आज एक बड़ी शुभ घड़ी है। आज दिवंगत पूज्य अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की जन्मतिथि भी है। मैं इस एग्जीबिशन के क्यूरेटर माननीय विजय वहल जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस समय एक इस प्रकार का नया रास्ता खोजा है जन जन तक पहुंचने का, जन जन तक क्रांति लाने का। बात शुरू होती है टेररिज्म से, आतंक से। भारत इसका भुक्तभोगी रहा है, इसमें दो राय नहीं है। इसके आजादी के तुरंत बाद से ही एक नए माहौल की तैयारी शुरू हुई थी, जिसमें भारतवर्ष की वो सारी परंपराएं जिनके आधार पर हमने आजादी प्राप्त करने का सपन संजोया था और प्राप्त की थी, जो भारतीय संस्कृति के आधार पर बनी हुई परंपराएं थी जिनके अनुसार हमने आचरण किया था, उनको आहिस्ता आहिस्ता बुलाने का प्रयोग होगा। जिस देश में वैदिक नीति साथ साथ चलने, वेद जैसे मंत्र संगच्छध्वम संवदध्वम समूह मनासी जानताम की बात थी, वहां भेदभाव डालकर टुकड़े टुकड़े गैंग पैदा करके अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न करके एक नए प्रकार के माहौल का आरंभ हुआ। आजादी के तुरंत बाद से ही इस विचारधारा ने पनपना शुरू किया। इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष वामपंथी पक्ष है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और विशेषकर भारत में एक आतंक का आरंभ हुआ। जो विचारकर्मी लोग हैं या जिन्हें बुद्धिजीवी कहते हैं, 1947 के तुरंत बाद ही रूस की उस समय की सरकार का दखल और उस प्रकार की एंटी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का प्रसार भारत में होना शुरू हुआ, और जिसकी वजह से एक आतंक, जिसे हम वामपंथी आतंक कहते हैं, लेफ्टिस्ट मूवमेंट कहते हैं, उसका आरंभ हुआ। और इस पूरे की अगुवाई की बुद्धिजीवी लोगों ने। असल में उससे दो प्रकार के बुद्धिजीवी पैदा हुए। एक को मैं कहूंगा वामपंथी और दूसरे को कहूंगा दामपंथी। ऐसे लोग जो भाड़े के तौर पर प्रयोग किए जाते थे, जिनको रूस की सरकार और वामपंथी सरकारें खरीदती थी, उनका मान सम्मान होता था और उनमें आर्टिस्ट लोग बहुत होते थे, एजुकेशनिस्ट बहुत होते थे। एक वो थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे वाला जो आतंक जिसके हम भुक्त भोगी रहे हैं, वो इस्लाम से संबंधित था, जिसे हम ये कह सकते हैं कि एक इस प्रकार की परिस्थिति का जन्म देना कि मारकाट, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, इन सब का एक कारण बना। ये दोनों ही धाराएं मैं इनको कहूंगा, जिसमें एक लगभग अवरुद्ध हो चुकी है, लेकिन उसका एक नया स्वरूप जो आज चीन से जुड़ा है,
वो पैदा होकर चीन से लेकर और कन्याकुमारी तक एक कॉरिडोर बन गया है, वामपंथी कॉरिडोर, जिसे नक्सलवादी और दूसरे लोग करते हैं उनका आतंकवाद। इन दूसरी ओर जो एक धर्म विशेष इस्लाम से जो जुड़ा है, उसके कारण से इन दोनों में एक समानता है, और वो दोनों में समानता ये है कि ये दोनों ही नेशनलिज्म को, राष्ट्रीयता को नहीं मानते। एक के लिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सर्वोपरि है देशवाद में, दूसरे के लिए इस्लाम सर्वोपरि है देशवाद में। इसलिए सबसे बड़ा आघात भारत में राष्ट्रीयता के मुद्दे पर हुआ है। राष्ट्रीयता की चेतना जिसके कारण भारत विश्व गुरु रहा है, जाना माना रहा है, और बहुत कठिन परिस्थितियों में से बाहर निकला है, उसको समाप्त करने का, उन परंपराओं को बिगाड़ देने का, उन चीजों को खत्म कर देने का यही सिलसिला इन दोनों मतों की अवधारणा से होता है। मेरा मानना यह है कि जब इस प्रकार की परिस्थितियां हों तो उसके लिए सबका आगे आना, हरेक की एक भागीदारी होना सुनिश्चित है। इसलिए जन जन तक संपर्क करना और उन तक पहुंचना इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है। इसमें जो हमारे कलाकर्मी हैं, विशेषकर जो पेंटिंग्स बनाते हैं, जो विजुअल आर्टिस्ट हैं, उनकी एक प्रमुख भूमिका है और रही है, क्योंकि किसी एक विजुअल आर्ट के द्वारा हम भाषा से दूर रहकर भी एक संदेश लेकर जा सकते हैं, और जो चीज एक विजुअल आर्ट के द्वारा प्राप्त होती है, पेंटिंग है, कलाकृति है, उसके द्वारा एक पन्ने में, एक सफेद पर या एक जगह पर आप वॉल्यूम से भी ज्यादा अर्थपूर्ण सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए ऐसे मौके पर जब लोगों के पास पुस्तकें पढ़ने का, सुनने का, देखने का इतना समय भी नहीं है और इतनी भावना भी नहीं है, और फिर भाषा की कठिनता और कठिनाई तो रहती ही है, एक समर्थ अभियान के लिए पेंटिंग्स बहुत आवश्यक है। हमेशा से पेंटिंग्स का काम बहुत महत्वपूर्ण रहा है। विश्व की क्रांतियों को, विश्व के राजाओं को, विश्व के नई दिशा देने वालों को पेंटिंग्स का सहारा हमेशा लेते आए हैं। रामायण में पेंटिंग्स हुई हैं, महाभारत में पेंटिंग्स हैं, और हमारे धर्मशास्त्रों में तो पेंटिंग्स का बहुत महत्व बताया गया है। मुक्ति द्वार तक उनको कहा गया है। इसलिए आरंभ से ही जब कोई शायद भाषा भी नहीं थी, कोई संस्कृति भी नहीं थी, तो केव पेंटिंग्स होती थी। मैंने केव पेंटिंग्स देखी हैं, अंदर घुस के देखी हैं, जाके देखी हैं, और उस वक्त के चित्रण भी उस संस्कृति को उजागर करते हैं और भावपूर्ण करते हैं, क्योंकि विजुअल आर्ट्स में भाव और भावना दोनों ही सर्वोपरि रहते हैं, शब्द और अर्थ निगण्य रहते हैं। इसलिए इसका प्रभाव सीधे हृदय पर होता है, इसका प्रभाव सीधा मन पर होता है। अगर हमारे आर्टिस्ट अपनी कलाकृतियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचे, और जो आतंकवादी है, जो आतंकवादी फिलॉसफी है, उसके विरुद्ध आवाज उठाएं, और जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना है, भारत एक होने की भावना है, जो हम आरंभ से ही मानते आए हैं, वयम अमृतस्य पुत्रः, कि हम तो सब अमृत के पुत्र हैं,
इस प्रकार की सद्भावना फैलाने के लिए आर्ट्स का बहुत महत्व है। और इस परिप्रेक्ष्य में आज के दिन कला दृश्यम द्वारा किया गया ये प्रयास बहुत ही शोभनीय है और प्रशंसा के काबिल है। मेरा मानना है, विश्वास है कि इस प्रकार की कलाकृतियों की एग्जीबिशंस जगह जगह पर आरंभ होंगी और लोगों को सही प्रकार का संदेश देने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।
Please visit to see this exhibition on Facebook of Kaladrishyam and Peace March. Please like it, share it, comment it, and enjoy it. Thank you once again to Honorable Brigadier Dr. Raj Bahadur Sharma ji, Vijay Bahal ji, and all the participant artists to make this exhibition successful. Thank you.